Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everybody once again. I hope that you have watched the video one thoroughly and understood whatever is being told to you. We are talking about ambiguities and inconsistencies in our words that we speak and also in our words or sentences that we write or we type anywhere. The ambiguities, as we've already seen, it happens when certain spoken words, certain written words, they do not give you a clear meaning. The meaning is unclear, and sometimes it appears to be something vague. And another kind of ambiguity comes when there are inconsistencies in the sentences. Inconsistency means that you misplace the words or punctuation marks, which either changes the meaning of the sentence, and sometimes it changes the meaning quite the reverse, the opposite of what is intended to be said. I'll bring you the screen and then we'll continue with this part of the discussion, which will be known as video 2. Your screen, your slides will be in front of you within a matter of seconds. I believe they are now in front of you. Now, we are going to continue the discussion on ambiguities and inconsistencies because we want to remove them and we want to be specific in our talk. We started the discussion with the concept of miscommunication. The gist for the miscommunication is that the intended meaning of a message could not be communicated, miscommunication. There were a lot of reasons that we discussed, like lack of context in the words, the assumptions made on the part of the listener or the reader, and a lot of ambiguities and vaguenesses in the sentences, mismatches in the parties, like the sending party and the receiving party. They do not agree on a common language. There is a communication gap. There is a lingo gap. And sometimes our sentences are too much overloaded. They contain too many words, too many phrases, and a very few breaks in between. So we talk much about that. We also had the examples of ambiguities in sort of some English words like here, here. The sound effect of these words is the same, but the spelling and the meaning are different. So for our people, the people living in this region in Pakistan, the people who don't have the English as the first language, there are always ambiguities and misunderstandings, or you can call them miscommunication. Then we talked about inconsistencies. Inconsistency happens when the sentence does not have properly placed words, the verbs and the nouns are misplaced. We also talked about the difference between a layman and a professional. And we talked to some examples of miscommunication, which I ask you to read for yourself as well. Then we had some one-liner or two-liner examples of ambiguities being made. Like, for example, I once shot an elephant in my sandals. So it's an ambiguity. Something is not coming very much clear to us. Whether you shot the elephant which was inside your sandals, or you shot the elephant who was wearing your sandals, or were you yourself wearing the sandals when you shot the elephant? So there are ambiguities. There are some obvious meanings, but the obvious meanings, they are readily understood only by the people whose first language is English. So we talked some other examples like fine for parking here. Whether it is fine for parking here, is it fine to park here, or
Does it mean that if you park your car there, then you will be fined? You'll have, आपको वो जुर्माना पे करना पड़ेगा. अब और भी कई एग्जांपल्स थी, लाइक उर्दू में एग्जांपल थी उठो मत बैठो. डज दैट मीन कि जी उठ जाओ बैठना नहीं है, या मत उठो और बैठे रहो? इज देयर अ क्लियर मीनिंग ऑफ इट? दैट्स एन एम्बिग्विटी. और भी कई एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम वीडियो लेक्चर में उसको हम कवर करें, तो आपने खुद पढ़ना है. अदरवाइज हमारा जो थर्सडे को लेक्चर होगा उसमें हम इंटरेक्टिव सेशन करेंगे और इस पे बातचीत भी करेंगे. तो आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन्स होंगी या क्वेश्चंस होंगे, एम्बिग्विटीज होंगी, तो हम फिर उनको उस वक्त एड्रेस कर लेंगे. कुछ पिक्चर एग्जांपल्स भी यहाँ पे रखी थी. मैंने ये कहा था कि आप खुद इनको जरा, समझदार लोग हैं, आप खुद इन्हें पढ़िएगा. अब आते हैं आज की वीडियो पे जिसमें हमने काफी कुछ कवर करना है. आज की वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स देखनी है और उनको दुरुस्त करने का तरीका देखना है. उन एग्जांपल्स में एम्बिग्विटीज हैं या वेग हैं, और ये ध्यान में रखें कि एम्बिग्विटीज और वेग सेंटेंसेस सिर्फ लेमैन ही बोलेंगे. प्रोफेशनल्स का काम नहीं है कि वो वेग या एम्बिगुअस सेंटेंसेस बोले. तो लेट्स गेट अहेड. एम्बिग्विटीज को रोकने या उनसे बचने का तरीका, एक सबसे बड़ा तरीका मैंने आपको बताया था कि हम एक मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्मार्ट. इट्स एन एक्रोनिम SMART. और इस एक्रोनिम या इस मेथोडोलॉजी का जो सबसे पहला वर्ड है S, which stands for specific, हमने उसी पे ही डिस्कशन करनी है. आइंदा इंशाल्लाह किसी डिस्कशन में हम पूरी स्मार्ट पे भी बात करेंगे, लेकिन इस स्मार्ट का सिर्फ एक हिस्सा हमने यहाँ पे डील करना है और वो है स्पेसिफिक. स्पेसिफिक, S stands for specific. तो स्पेसिफिक के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में या मुख्तलिफ डोमेन्स में बोले जाते हैं, समझे जाते हैं. लेकिन मेरे हिसाब से स्पेसिफिक का मतलब है सिग्निफिकेंट. किसी चीज को हाईलाइट करना, किसी चीज को एनहेंस करना, वो कहलाता है सिग्निफिकेंट या स्पेसिफिक. स्ट्रेचिंग का मतलब है कि आपका वर्ड स्ट्रेच है किसी खास मीनिंग के ऊपर. और स्पेसिफिक का मतलब सिंपल भी हो सकता है, यानी इतना सिंपल कि उसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. सस्टेनेबल भी हो सकता है. ये ध्यान में रखें कि स्पेसिफिक का ऑपोजिट है जनरलाइज. जब हम एक अमूमी बात करते हैं तो हम बातें जनरलाइज तरीके से कह रहे होते हैं, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक टारगेट हमारे जहन में होता. लेकिन अगर आप किसी चीज को आइसोलेट करें, बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज को आइसोलेट करें या टारगेट करें, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है. अब इस पे और भी कई बातें हो सकती हैं. हम थोड़ा सा स्किप करके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. अब उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने. हाउ कैन वी बी स्पेसिफिक? हम अपने बोलने या अपने लिखने में, अगर हम कोई बोल रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं या कोई लेक्चर दे रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हम उसमें उस बोलने में किस तरह से स्पेसिफिक हो सकते हैं. और अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कोई स्पीच लिख रहे हैं, कोई पेपर में आंसर लिख रहे हैं या किसी को ईमेल लिख रहे हैं, ऑफिशियल ईमेल, हम उसमें किस तरह से स्पेसिफिक हो सकते हैं. अब एक डिफरेंस आपको समझना है कि जो लेमैन की स्पीच या राइटिंग होती है और जो प्रोफेशनल की राइटिंग या स्पीच होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है. तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो लेमैन है वो अपनी बातों में बहुत सारे क्लेम्स करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के मतलब क्लेम करते हैं, लेकिन उस क्लेम का सपोर्ट उन सेंटेंसेस में नहीं होता, एविडेंस नहीं होता कि आप उस क्लेम को एक्सेप्ट कर लें या मान लें. ऐसा नहीं होता, बस सिर्फ वो क्लेम्स करते हैं, और उसका कोई सबूत या उसकी सपोर्टिंग एविडेंस कोई भी नहीं देते. तो हमें ये चाहिए, अगर हम स्पेसिफिक या प्रोफेशनल बात करने लगे तो हमारी बात में सिर्फ क्लेम्स ही नहीं होने चाहिए, और झूठे क्लेम्स तो खास तौर पे नहीं होने चाहिए. ऐसे क्लेम्स होने चाहिए जिनको आप सच साबित कर रहे हो. और अभी थोड़ी देर में कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे कि वो साबित करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है.
जिस क्लेम को आप अच्छी तरह जानते हैं उसे साबित करना, कम से कम अल्फाज में साबित करना कोई बड़ा मसला नहीं होता। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एविडेंस जो आप अपने क्लेम के सपोर्ट में देंगे वो ब्रीफ होना चाहिए। कोई लंबा चौड़ा एविडेंस जिस तरह किसी मुकदमे का कोई सबूत होता है उस तरह का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा अंडरस्टैंडेबल सा एविडेंस होना चाहिए। अब एक जुमले की एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो आप में से अक्सर लोगों ने एग्जाम के दौरान अपने शॉर्ट आंसर्स में लिखा, लेकिन उसको हम एक लेमन क्लेम के तौर पे लेने पे मजबूर हो गए। मसलन आपने क्लेम किया जी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का क्लेम बन जाता है कि जबकि एक्चुअल सिचुएशन ये नहीं है। मैंने लेक्चर्स के दौरान भी ये कभी भी नहीं कहा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ही बेहतर होती है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होती या उसको होना ही नहीं चाहिए। मैंने कभी ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। मैंने हमेशा यही कहा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप किस वक्त फॉर्मल कम्युनिकेशन करें और किस वक्त फॉर्मल कम्युनिकेशन की बजाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करें। तो ये सिर्फ एक जुमला, एक बस ये कह देना कि जी फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फुल स्टॉप, ये बात बिल्कुल गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेमन की मुंह से निकलने की बात एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम मान लेंगे कि जी लेमन को कुछ ज्यादा पता नहीं होता तो वो कुछ भी क्लेम कर सकता है, लेकिन उसके क्लेम्स उस तक। हमारे क्लेम्स जो हैं वो लेमन की तरह के नहीं होने चाहिए, प्रोफेशनल की तरह के होने चाहिए। और प्रोफेशनल कभी भी कोई फॉल्स क्लेम नहीं करता, लेकिन अगर क्लेम कोई वो साबित करना चाह रहा है कि जी मेरा क्लेम है, इट शुड बी एक्सेप्टेड, तो फिर उसका कोई ना कोई एविडेंस देता है। अब ये जो एग्जांपल है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इससे कहीं बेहतर ये हो सकता था कि हम एडमिट करें कि जी फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों ही बेटर हैं, दोनों में से कोई भी बैड नहीं है, बुरी नहीं है। लेकिन फिर प्रोफेशनल इसको किस तरह से कहेगा? प्रोफेशनल की कोशिश होगी कि वो हर क्लेम के पीछे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करे प्रूफ के तौर पे जो उसकी अपनी डोमेन या अपने फील्ड के हैं। प्रोफेशनल जिस पर्टिकुलर प्रोफेशन या डोमेन से ताल्लुक रखता है, ही शुड स्पीक दोज वर्ड्स जिनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। तो सुनने वाले को पता चलेगा कि जी ये कीवर्ड्स बोल रहे हैं, इनका मीनिंग क्या है, और कीवर्ड्स का मीनिंग ही असल में क्लेम्स के सपोर्ट में होता है। अब अगर जिस तरह से मैं आपसे ये कहूं कि एक इंटीजर एक डेटा टाइप है, तो अगर सिर्फ ये कह दिया जाए कि जी इंटीजर एक टाइप है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि इंटीजर एक डेटा टाइप है, तो ये हमने अपने डोमेन का एक कीवर्ड इस्तेमाल किया, डेटा टाइप। तो सुनने वाला समझ जाएगा कि हाँ क्या बात कही जा रही है, इंटीजर के मतलब कही जा रही है, और इंटीजर का रेलेवेंस ये है कि वो एक डेटा टाइप है। तो हमें अपने वर्ड्स जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं उनमें अपने डोमेन के कोई ना कोई टर्म्स, कोई ना कोई कीवर्ड्स का सपोर्ट लिखना है। अब ये जो एग्जांपल थी फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो मेरे हिसाब से एक फॉल्स क्लेम है, इसकी बरक्स हमें क्या, प्रोफेशनल को क्या जुमला बोलना चाहिए था? उसको कहना चाहिए था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत हेल्पफुल, और इसी बात को वो आगे इस तरह से कंटिन्यू करे, यानी एक सबूत दे, एक एविडेंस दे कि जी क्यों मैं समझ रहा हूं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों ही हेल्पफुल है, बिकॉज इट डिपेंड्स व्हेन एंड वेयर दे आर परफॉर्म्ड। क्योंकि हम अब किसी जगह पे फॉर्मल कम्युनिकेशन करें या किस जगह पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करें, ये डिपेंड करेगा कि हम एक्चुअली कहाँ पे ये कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बड़ी हद तक जो जुमला है वो लेमैन से प्रोफेशनल की तरफ चला गया। इस बात को आपने बहुत गौर से सुनना है और समझना है, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन में भी हम इस पे और एम्फसिस करेंगे
लेकिन यही वो गलतियां हैं जो आप अपने एग्जाम्स में शॉर्ट आंसर्स में लिखते हैं और बाद में आप क्लेम करते हैं कि जी आपने तो ठीक लिखा है लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिले। तो मार्क्स इसलिए नहीं मिले कि आपने जो बात कही है वो बहुत खोखली है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दुनिया में कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर आप इस चीज को एडमिट करें कि आप प्रोफेशनल के तौर पे इसको एक्सेप्ट नहीं कर, बल्कि आप लेमैन के तौर पे इसको एक्सेप्ट कर। लेमन की बातें खोखली हों वो भी चलेंगी, क्योंकि हम उसे माफ कर सकते हैं बेस्ड ऑन उसका कम नॉलेज होना या कम इल्म होना या कम पढ़ा लिखा होना। लेकिन प्रोफेशनल को ऐसे जुमले कहने पे नहीं माफ किया जा सकता, क्योंकि वो कम इल्म आदमी नहीं है, वो प्रोफेशनल है, वो अपने प्रोफेशन को, ही सपोज टू नो हिज प्रोफेशन। सारे का सारा ना सही, लेकिन बहुत हद तक वो अपने प्रोफेशन को जानता है। इस चीज का सबूत कि वो अपने प्रोफेशन को जानता है वो इस तरह से मिलता है कि उसके जो वर्ड्स होते हैं, बोले हुए वर्ड्स या लिखे हुए वर्ड्स, उनमें कोई ना कोई प्रोफेशनल डोमेन के कीवर्ड्स होते हैं। वहीं से आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि यस द पर्सन नोज। तो ये जो जुमला था फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल क्या हो सकता है? एक तरीका मैंने आपको, एक एग्जांपल आपको दे दी है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोथ आर हेल्पफुल। देखिए क्लेम भी मैंने किया है और बात सच्ची भी है, लेकिन उसका एविडेंस अगले हिस्से में लिखा हुआ है, बिकॉज इट डिपेंड्स व्हेन एंड वेयर दे आर परफॉर्म्ड। तो अब बड़ी हद तक समझ आ जानी चाहिए कि जी कहाँ पे हम फॉर्मल यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि वहां फॉर्मल यूज करना चाहिए था कि नहीं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहां यूज होना चाहिए था वहीं पे हमने उसको यूज किया है, तो तब फिर जस्टिफाई होता है। तो इसका मतलब है कि दोनों किस्म की कम्युनिकेशन अपने अपने रेलेवेंस और अपनी अपनी स्पेस में करेक्ट हैं। दोनों ही बेहतर हैं, दोनों में से कोई बुरी नहीं है और कोई अच्छी नहीं है, दोनों ही अच्छी है। एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर आप स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं तो लंबे लंबे जुमले ना कहें। डू नॉट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सांस कई दफा आपको लेना पड़ जाए रुक के, वो लंबे सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस बोलें या ऐसे सेंटेंसेस लिखें जिनको पढ़ते वक्त लोग ज्यादा सांस लेने की जरूरत महसूस ना करें। यानी जहां आप सांस लेंगे वहां पे जुमला ब्रेक हो जाएगा, और वो जुमला आधा ब्रेक हुआ होगा, आधा जुमला भी रहता होगा। लेकिन आधे जुमले जब ब्रेक होते हैं सांस लेने की वजह से, तो वो अपना ओरिजिनल मीनिंग खो देते हैं। अब फर्ज करें आपने एक ऐसा सेंटेंस लिखा है, इतना लंबा सेंटेंस लिखा है कि जो 3 मुख्तलिफ जुमलों को जमा करके एक सेंटेंस बनाया गया है। व्हाट विल हैपन कि जब आप वो जुमला बोलना शुरू करेंगे, या अगर आपने कहीं पे वो सेंटेंस लिखा हुआ है अपनी ईमेल में या अपने चैट में या कहीं पे भी प्रेजेंटेशन में, तो पढ़ने वाला उसे पढ़ रहा होगा। अब जैसे जैसे वो आगे पढ़ता जाएगा तो वो उसके जो 3 हिस्से हैं उनमें से पहला हिस्सा उस वक्त भूल चुका होगा जब वो दूसरा हिस्सा पढ़ रहा होगा, और जब वो तीसरा हिस्सा पढ़ रहा होगा तो वो पहला और दूसरा हिस्सा जो उसने पढ़ लिए हैं वो उनको ही बिल्कुल भूल चुका है, उनका मीनिंग ही उसके जहन में नहीं आ रहा। तो अगर ये जुमले आपके सामने बोले गए हैं तो और ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अब ये आपके सामने लिखे हुए नहीं है, आपके सामने एक लंबा जुमला बोला गया है। तो आप उसके पहले और दूसरे हिस्से को आखिरी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल फरामोश कर चुके होंगे, यानी आप भूल ही चुके होंगे कि क्या कहा गया था, उसका मतलब क्या था। इसके बरक्स जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, वो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने में और उसके जहन में कुछ मुद्दत तक उस अंडरस्टैंडिंग को रखने में बहुत कामयाब हो। अभी इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। अब स्पेसिफिक होने का एक्चुअल मतलब क्या है, यानी एक्चुअली स्पेसिफिक हम कहते हैं ना कि जी स्पेसिफिक हूं अपने वर्ड्स में, तो उसका असल मतलब क्या है? बड़ा सिंपल। स्पेसिफिक होने का मतलब है दैट यू आर टू द पॉइंट। अब देखें ये जो जुमला मैंने आपके सामने लिखा है वो 3 हिस्सों में है, ये भी बात समझें, ये लॉन्ग सेंटेंस नहीं है। बी ऑन द पॉइंट,
बीइंग वेरी क्लियर एंड बीइंग नॉन एम्बिगुअस, ये तीन मुख्तलिफ जुमलों की शक्ल में मैंने लिख दिया ताकि आप तीनों को अलग-अलग पढ़ सकें, उन्हें जहन में बिठा सकें और उनके मीनिंग भी आपके जहन में क्लियर होता है। तो आप व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक, आप कैसे स्पेसिफिक होते हैं? उस वक्त होते हैं जब यू आर ऑन द पॉइंट। अपने जुमले में पॉइंट पे बात करें, दाएं बाएं की एक्स्ट्रा बात, जिसको कि हम डेटा कम्युनिकेशन में नॉइज भी कहते हैं, नॉइज शामिल ना हो, क्योंकि लोगों की तवज्जो नॉइज की तरफ होगी, असल मीनिंग की तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं रहेगी। सो बी ऑन द पॉइंट, बी टू द पॉइंट। दूसरा है बी वेरी क्लियर। अपने जुमले में बिल्कुल क्लियर वर्ड्स इस्तेमाल करें। जो थोड़ी देर पहले हमने एम्बिग्विटीज और इनकंसिस्टेंसीज की एग्जांपल देखी थी या वेगनेस की एग्जांपल्स देखी थी, उन वर्ड्स को इस्तेमाल ना करें या उन वर्ड्स के सीक्वेंसेस को इस्तेमाल ना करें जो एम्बिग्विटीज पैदा करते हैं। फिर तीसरा हिस्सा है नॉन एम्बिगुअस जुमला बोलें। क्लियर मीनिंग वाले वर्ड्स या मल्टीपल मीनिंग वाले वर्ड्स को आपने नहीं लेना, आपने क्लियर मीनिंग या सिंगुलर मीनिंग वाले वर्ड्स को यूज करना है। फिर एक बात आपको याद रखनी है कि आप स्पेसिफिक उस वक्त होंगे जब आप जनरलाइज्ड नहीं होंगे, क्योंकि स्पेसिफिक और जनरलाइज्ड एक दूसरे से ऑपोजिट चीजें। अब जैसे अगर मैं ये कहूं कि जी ऑल स्टूडेंट्स विल अटेंड, तो इसका मतलब है कि मैं जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं, ऑल स्टूडेंट्स में सारे ही स्टूडेंट्स आ गए। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि आपकी क्लास के होंगे या किसी और सेक्शन के होंगे, मैंने कहा कि जी ऑल स्टूडेंट्स विल अटेंड। तो इसका मतलब है कि बगैर किसी तखसीस के कि जी कौन किस क्लास का है, कोई मेल है या फीमेल है, ओल्ड है या न्यू है, सीनियर है या जूनियर है, सबने पार्टिसिपेट करना है, सबने अटेंड करना है। तो ये है जनरलाइज्ड। लेकिन अब इसमें नुकसान ये होगा कि जिन स्टूडेंट्स को मैं वहां देखना चाह रहा हूं शायद वो है ही नहीं वहां पे, वो अंडर द कवर ऑफ जनरलाइज्ड कि जी सारे ही आएंगे तो हमारे आने की क्या जरूरत है, वो इस मामले में फिर वो नजरों के सामने नहीं आ सकेंगे। जिनको मैं चाह रहा था कि वो अटेंड करें वो नहीं आ रहे। लेकिन अगर मैं खास तौर पे ये कहूं कि जी ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ ग्लोबल प्रोफेशनल प्रैक्टिस सेक्शन ए, और मे बी सेक्शन बी कह दूं, या प्रोफेशनल प्रैक्टिस सेक्शन ए, अब ये जनरलाइज्ड नहीं है, ये स्पेसिफिक है, स्पेशलाइज्ड है और टारगेटेड है। टारगेट सेट कर दिया मैंने कि जी सिर्फ ये वाले लोग, ओनली दीज पीपल विल अटेंड। इसका मतलब है कि वो जो जनरलाइज्ड वाले बीच में बाकी नॉइज शामिल थी उसको हमने फिल्टर आउट कर दिया है। इसका मतलब है अब हम जनरलाइज्ड नहीं रहे, हम एम्बिगुअस भी नहीं रहे, हम क्लियर हो गए, स्पेसिफिक हो गए। पढ़ने वाले को भी पता चल गया कि जी मुझे कहा जा रहा है या किसी और को कहा जा रहा है, उसके लिए क्लियर हो गई बात। आप ऑन टारगेट, आपने अपने वर्ड्स को जिस तरह आप वो टारगेट लगाते हैं, फायरिंग बुलेट्स जो होती हैं या वो तीर कमान से, आर्चरी से वो करते हैं, तो जो निशाना होता है वो तय कर दिया जाता है कि जी यहीं पे हिट होगा तो कोई जीत सकेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से ये वर्ड्स भी टारगेटेड होने चाहिए, तभी आप अपने आप को स्पेसिफिक कहलवाने में जीत सकेंगे। और स्पेसिफिक होने का मतलब है प्रोफेशनल होना, और जिसका मतलब है कि लेमन ना होना। इनको आप नहीं फॉलो करेंगे, आप टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे, एम्बिगुअस बात करेंगे, जनरलाइज बात करेंगे, तो यू विल स्टिल रिमेन लेमैन, क्योंकि आप अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सके। जो मैसेज आपने भेजा उसमें जो एक्चुअल मीनिंग है वो आप कन्वे नहीं कर सके। अब किस तरह से स्पेसिफिक होना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमने स्मार्ट का जो स्पेसिफिक वाला टूल है उसको यूज करना है। लेकिन सवाल ये है कि वो टूल किस तरह से यूज होगा। अब आपने गौर से सुनना है। The answer to this question, the question is how to be specific. इसका आंसर ये है that your sentence or your statement should already have an answer to all or the maximum of the following questions. यानी आप जो जुमला बोल रहे हैं वो इतना मुकम्मल होना चाहिए
उसके अंदर कोई सवाल ना पैदा हो जी, आपके जुमले से कोई एकदम आपसे सवाल पूछना शुरू कर दे, फलां चीज कहाँ है, फलां चीज कहाँ है। अब वो फलां जो बात हम कर रहे हैं सादा जुबान में, वो एक्चुअली कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, क्वेरी वर्ड्स हैं, जिनके आंसर्स इंसान अक्सर तलाश कर रहे होते हैं। तो हमें उन क्वेश्चंस के तमाम अगर पॉसिबल है, अदरवाइज जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं क्वेश्चंस, उनके आंसर अगर हम अपने सेंटेंस में या अपने पैराग्राफ में रखते हैं तो फिर हम स्पेसिफिक हैं, अदरवाइज नहीं। अब वो क्वेश्चंस क्या हैं? वेरी सिंपल से, इन क्वेश्चंस के आंसर्स इन सारों के अगर मुमकिन हो या अगर जरूरत हो, या फिर इनमें से जो मैक्सिमम है उनके आंसर्स हमारे सेंटेंसेस में होने चाहिए। अब वो सवाल क्या है? हमारे सेंटेंस में व्हाट होना चाहिए, व्हाट का आंसर होना चाहिए एक्चुअली। ये जो जुमला हम बोल रहे हैं, पढ़ने वाले को या सुनने वाले को ये बात तो समझ आए ना कि क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आपके सेंटेंस में। अब उर्दू में आप इसे क्या कहेंगे जी? क्या, ये क्या कहना चाह रहे हैं? अक्सर आप लोगों के जुमले सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको इस वजह से समझ नहीं आती क्योंकि बोलने वाले ने या लिखने वाले ने यही क्लियर नहीं किया कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब देखें, कोई बड़ा ही एम्बिगुअस किस्म का कोई बोले कि जी रेनिंग, अब आपको क्या समझ आई रेनिंग क्या मतलब? यहाँ पे तो कोई रेन नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, ये क्या कहना चाह रहा है? रेनिंग क्या मतलब? कोई पोएट्री है या कोई जुमला है या कोई सेंटेंस कोई और चीज है? तो बोलने वाले ने बहुत सारा क्लू छोड़ दिया है। हर एक अपनी मर्जी से अब कुछ सोच रहा होगा कि पता नहीं क्या कहना चाह रहा था। अब देखें, आप में से जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, मैंने उस वक्त भी आपको ये कहा था कि जब आप अपने प्रोजेक्ट का कोई टाइटल सेट करते हैं तो टाइटल कंप्लीट और स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप कहते हैं ना कि जी मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल है मैनेजमेंट सिस्टम, सो यू आर नॉट स्पेसिफिक। आपने व्हाट का आधा जवाब दिया है कि जी मैनेजमेंट सिस्टम है। वो कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम? दुनिया में कुछ 100 किस्म के मैनेजमेंट सिस्टम होंगे, लेकिन एक्चुअली आप किस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं? और वो शख्स जो सिर्फ ये कहे कि जी मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सिस्टम, वो तो बहुत ही ज्यादा वेग हो गया, बहुत ज्यादा एजम्पशंस जो है, पढ़ने वाला या सुनने वाला बहुत ही एजम्पशंस लेना शुरू करेगा। कोई कौन सा सिस्टम, किस सिस्टम की बात कर रहा है? कोई लाखों किस्म के सिस्टम्स हैं दुनिया में, व्हाट विच एग्जैक्टली इज ही टॉकिंग अबाउट? तो एक तो आपको ज़हन में रखना है कि जो भी बात कही जाए, जो भी जुमला बोला जाए, लिखा जाए, उसमें व्हाट का आंसर होना चाहिए। अब समटाइम्स शायद व्हाट से काम ना बने, या व्हाट की बजाय हमें जरूरत हो किसी और क्वेश्चन के आंसर की, लाइक विच। तो व्हाट का मतलब था क्या, और विच का मतलब होता है कौन सा। यानी बहुत सारी चीजें हों, बहुत सारी एंटिटीज हों, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, तो हम उनमें से किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा है जिसकी बात की जा रही है। जो थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी थी मैंने, जनरलाइज्ड की कि जी ऑल स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड, तो अब लोगों के अंदर थोड़ी सी एक कंफ्यूजन पैदा होगी कि जी कौन शामिल है इसमें, विच स्टूडेंट्स, कौन सा। तो आप जो जुमला बोले अगर जरूरत है तो उसके अंदर इस विच का आंसर भी होना चाहिए, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि ये सिर्फ उन सेंटेंसेस में जहां पे आपने किसी सिंगुलर एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है बहुत सारी एंटिटीज या एलिमेंट्स के बीच में से। अब देखें, अगर मैं ये कहूं कि जी क्लासरूम में चले जाएं, अब व्हाट का जवाब तो आ गया कि जी क्या करें, क्लासरूम में चले जाएं। लेकिन अब जाने वाला आधे लोग पता नहीं किस क्लासरूम में चले जाएंगे, आधे किसी और क्लासरूम में चले जाएंगे। तो मैंने उनको क्लियर नहीं किया ना, मेरी गलती, मुझे क्लियर करना चाहिए था
व्हाट भी क्लियर करना चाहिए था और विच भी। लाइक मुझे कहना चाहिए था कि आप रूम नंबर D3 में चले जाएं। अब व्हाट का आंसर भी आ गया और विच का आंसर भी आ गया कि जी कौन सा कमरा, और अब सोचिए तो वेयर का आंसर भी है इसमें। वो जो तीसरा क्वेश्चन है ना W वाला, वेयर, कहां, वो भी इसमें आंसर आ गया। तीन चीजों के आंसर आ गए, व्हाट, विच एंड वेयर। मैंने ये कह दिया कि जी D3 रूम में चले जाएं, तो व्हाट का आंसर भी है इसमें, यानी क्या करना है, कमरे में जाना है। विच D3, और वेयर का आंसर भी इसमें आ गया कि जी उनको डायरेक्शन भी एक वाजे हो गई। अब मेरे इस जुमले के जवाब में कोई मुझसे सवाल, मजीद सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने क्लियर बात कर दी है, स्पेसिफिक बात कर दी है कि जी गो टू रूम D3। लेकिन शायद किसी इंस्टांस में कोई ये पूछना चाहे कि जी क्यों भेजा जा रहा है, वाई, तो आप अगर अपने जुमले को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब मैं ये कह देता हूं कि जी गो टू रूम D3 फॉर द लेक्चर। अदरवाइज वैसे तो अंडरस्टूड है, भी मैं टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को क्लासरूम में क्यों भेज रहा है, लेक्चर के लिए भेज रहा होता है। लेकिन समटाइम्स ये एक कंफ्यूजन है कि जी क्लासरूम में कोई स्पीच है या कोई सेमिनार है या लेक्चर है, वो क्लियर करने की जरूरत होती है। तो वो जो वाई है, यानी क्यों, उसका आंसर वो भी आपके जुमले में होना चाहिए अगर जरूरत पड़ती है। तो अगर वैसे उसके बगैर अंडरस्टैंड हो जाता है, अप्रीहेंड हो जाता है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं। लेकिन अब आपने अंदाजा लगाया कि जो जुमला बोला गया उसमें मुख्तसर लफ्ज बोले गए हैं, लेकिन कोशिश यही की गई है कि जितना एक क्यूरियोसिटी या इंटेरोगेटिव किस्म के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी व्हाट का भी आंसर उसमें आ गया, विच का भी, वाई का भी, और वेयर का भी। और अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफिक हूं कि जी सेक्शन ए के स्टूडेंट्स, तो वो विच का आंसर भी है, और हु का मतलब कि जी कौन, और व्हेन अगर जरूरत पड़ती है तो आप व्हेन का भी आंसर उसमें ऐड कर दें। मसलन आप कह दें कि रूम नंबर D3 में सेक्शन ए के स्टूडेंट्स 10 मिनट के बाद पहुंच जाएं, व्हेन। अब जो जितने मैंने 4 5 6 लफ्ज जो बोले हैं या लिखे हैं इस सेंटेंस में, उनमें से हर एक वर्ड या हर एक दो वर्ड्स मिलके किसी ना किसी क्यूरियोसिटी क्वेश्चन का पहले से ही आंसर उसमें रख रहे हैं। अब किसी किस्म की एम्बिग्विटी भी उसमें नहीं आ रही, सब लोगों को क्लियर हो रहा है कि जी क्या हमने करना है, क्लास में जाना है, कौन सी क्लास में जाना है, D3 में जाना है, कब जाना है और किस किस ने जाना है, वो हमने उस जुमले में क्लियर कर दिया। अब आप लोगों से भी यही एक्सपेक्टेड है कि आप लोग जब कोई जुमला बोलते हैं, खास तौर पे आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो आपके उस क्वेश्चन के आंसर में क्लूलेस नहीं होना चाहिए, क्लूज नहीं छोड़े जाने चाहिए कि जी कोई बार बार सवाल पूछे कि जी ये किसको कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, कब के लिए कहा जा रहा है, इन लोगों को, कौन कौन से लोगों को या कौन सी जगह पे ये कहा जा रहा है। वो जुमला मुकम्मल होना चाहिए। और थोड़ी सी एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा भी, जिससे आपको ये प्रैक्टिस मिलेगी कि आप अपने आप को, टाइम आपके पास सारी जिंदगी पड़ी है अपने आप को करेक्ट करने का, लेकिन जितनी जल्दी आप अपने आप को करेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उतनी जल्दी आप सक्सेस की तरफ कदम उठाना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपको ये याद रखना चाहिए कि कैसे हम अपने वर्ड्स को, सेंटेंसेस को स्पेसिफिक बना सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि स्पेसिफिक बनाने का मतलब है कि हम लेमन से प्रोफेशनल की तरफ जो कदम उठा रहे हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, आपके सेंटेंस में, आपकी जुमले में जो आपने बोला है या लिखा है, ज्यादा से ज्यादा इन किस्म के क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से मौजूद होने चाहिए। क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्लूज हैं, व्हाट, विच, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, और समटाइम्स हमें जरूरत पड़ेगी हाउ, कैसे। तो ये उर्दू में भी आप इन जुमलों को याद रखें। व्हाट का मतलब है कि जी क्या कहा जा रहा है, वो क्लियर होना चाहिए, या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर होना चाहिए।
विच का मतलब है कौन सा। व्हाट और विच में फर्क ये है कि व्हाट का मतलब होता है कि क्या कहा जा रहा है, और विच का मतलब होता है कौन सा। यानी बहुत सारी एंटिटीज या एलिमेंट्स में से कोई एक स्पेसिफिक या एक ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स की जिनकी बात की जा रही है। जिस तरह हम कहते हैं ना जी नंबर्स, नंबर्स तो सारे ही नंबर्स हैं जितना भी वो बोले जाते हैं, लेकिन जब हम कह देते हैं जी इंटीजर्स, हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं। विच का आंसर क्या है, इंटीजर्स। लेकिन थोड़ा सा और हम क्लियर कर देते हैं, हम कह देते हैं जी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो विच का लफ्ज है उसका एक ज्यादा और एक स्टेप ऊपर या बेहतर एक मीनिंग सामने कन्वे हो गया। अब जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है वो क्लूलेस नहीं रहा। और तीसरे नंबर पे है वेयर, यानी आपको समटाइम्स कोई लोकेशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जी रूम D3, तो वेयर को आप उर्दू में कहेंगे कहाँ या किधर। और एक डब्ल्यू और है हु, जिसका मतलब है जी कौन, यानी कोई शख्स, कोई पर्सन या कोई एक्सटर्नल फैक्टर। फिर उसके बाद है व्हेन, यानी कब। हो सकता है कोई टाइम डिमांड हो कि जी कितने बजे या किस दिन, या एटलीस्ट ये कि जी फौरी तौर पे है या कुछ वक्त इंतजार करना है। और फिर उसके बाद है वाई, ये उस वक्त शामिल होता है जब आपने किसी को एक्सप्लेन करना हो कि भाई क्या वजह है किसी चीज की, क्यों। और समटाइम्स हमें जरूरत पड़ सकती है एक एज से शुरू होने वाले क्वेरी या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन की, वो है हाउ। यानी जरूरत पड़ सकती है ये जानने की कि जी की कोई काम किस तरह से हुआ या किस तरह से करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि जी आप क्रिकेट स्टेडियम पहुंच जाएं 4 बजे, मैच है वो देखना है, तो अब शायद किसी के जहन में ये क्वेश्चन हो कि भी जाना किस तरह है। तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जी आपने अपनी ट्रांसपोर्ट पे जाना है, या आप बाय ट्रांसपोर्ट है एक बस उसमें जाना है। तो समटाइम्स इस किस्म के एक क्लू की जरूरत पड़ जाती है फॉर सम सेंटेंसेस जिसमें हाउ का आंसर। तो ये ध्यान में रखें, अगर आप अपने सेंटेंसेस में मैक्सिमम इनमें से मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर नहीं रखेंगे, तो आप नॉन स्पेसिफिक ही रहेंगे, एम्बिगुअस होंगे आपके सेंटेंसेस, या फिर वेग होंगे, उनका कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा होगा। अब कैसे पता चलेगा कि आप क्लूलेस रह रहे हैं, तो आपको इस तरह पता चलेगा कि आप जैसे ही कोई जुमला बोलेंगे तो आप सवाल आना शुरू हो जाएंगे एकदम कि भाई क्या आपने कहा है, कहाँ की आपने बात कही है, क्यों कही है। तो उससे बेहतर है कि आप इन क्वेश्चंस का पहले से ही कोई ना कोई प्रॉपर ब्रीफ फॉर्म में आंसर अपने उस सेंटेंस में या उसमें कम से कम पैराग्राफ में रख दें। अगर लिसनर आपसे मुसलसल सवाल पे सवाल पूछी जा रहा है और उसे अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपने असल में कहना क्या था, इस जुमले में कहना क्या चाह रहे थे, तो आप जेहन में रख लें फिर आप स्पेसिफिक नहीं है, आप एम्बिगुअस हैं, आपका लिखा हुआ जुमला वेग है। एक बात और, लेमैन हमेशा हमेशा ना सही, अक्सर औकात ये होता है कि जो लेमैन जुमले बोलते हैं वो हमें पहले ही पता होता है। नॉर्मली इस तरह होता है, लेकिन लेमैन में, अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हैं उनमें कोई ऐसी बात ना लिखें जो टेकन फॉर ग्रांटेड हो सकती है, यानी सबको वो पता हो सकती है। अब जिस तरह मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया कि जी क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से शुरू किए जा रहे होते हैं जी, एज यू ऑलरेडी नो। भाई अगर मैं ऑलरेडी जानता हूं तो फिर मुझे आपसे सवाल पूछने की क्या जरूरत है। आप अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसमें आप ये कहते हैं कि एज एवरीबॉडी नोज, भाई हमें अगर पहले ही पता है तो हमने यहाँ पे तुम्हें बोलने के लिए क्यों बुलवाया है। इस किस्म के जुमलों से जिसमें आप कोई ऐसी बात कह रहे हो कि जो लोगों को पहले से ही पता है,
It's a complete waste of time. It's a complete waste of space. On the other hand, professionals हमेशा वो बात कहेंगे कि जो लोगों को पहले से नहीं पता, या एटलीस्ट वो अपनी बात इस अंदाज से कहेंगे कि उनकी कही हुई बात एक नई बात लगे। आपने प्रोफेशनल को ज़हमत ही इसलिए देनी है कि कोई चीज जो आप नहीं कर सके थे, आपको नहीं करनी आ रही थी, आप उसे नहीं जानते थे, वो प्रोफेशनल से जानना चाहते हैं। तो प्रोफेशनल के पास कोई ना कोई नई बात होनी चाहिए। अगर प्रोफेशनल किसी को यही बता रहा है जो किसी को पहले से ही पता है, तो फिर उस प्रोफेशनल की हमें जरूरत नहीं है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अब बहुत ही सीरियस किस्म की एग्जांपल्स हैं जो अक्सर आप लोग मिस्टेक्स करते हैं। वो मैं सारी मिस्टेक्स यहाँ पे इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन बाद में मैं आपको आपके पेपर्स जो है वो उनके सॉल्यूशंस रिलीज करके कमेंट्स के साथ भी बता दूंगा कि आपने कोई एक जुमला लिखते हुए या कोई बात कहते हुए क्या मिस्टेक की है। इस वक्त मैं एक जरा जनरल एक डिस्कशन में जो आमतौर पे मिस्टेक्स लोगों से होती हैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। खास तौर पे आप चूंकि माशाल्लाह आप ये सेमेस्टर्स आपके मुकम्मल हो जाएंगे, तो हो सकता है अभी या बाद में आपको कोई जॉब्स के इंटरव्यूज के लिए जाना पड़े। तो जो जॉब का इंटरव्यू कर रहा है वो बहुत सारी चीजें जज कर रहा है। वो आपके नॉलेज को भी जज कर रहा है और आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड को भी जज कर रहा है। तो समटाइम्स हमें बातें पता होती हैं लेकिन हम किसी क्वेश्चन से कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि हम खुद उसको नहीं समझ पाए, तो हम उसका जवाब सही नहीं देते, या फिर उसका जो जवाब सही होना चाहिए, इस अंदाज में होना चाहिए, हम नहीं देते। अब ये एक एग्जाम्पल है, इससे बात शुरू करते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, व्हाई डू यू यूज C++? क्या सवाल है? व्हाई डू यू यूज C++? अच्छा, ये एक कन्वर्स तरीके से भी हो सकता था सवाल, मसलन पूछा जाए व्हाई डू यू नॉट यूज C++? यानी वो शख्स जिसके मतलब पता चलता है कि जी वो C++ में काम नहीं करता, उसको वो इस तरह से पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू नॉट यूज C++? और वो शख्स जो C++ यूज करता है या उसने क्लेम किया है कि जी मैं C++ में एक्सपर्ट हूं, तो उसे एक अगर सवाल पूछा जाए, असल चीज सवाल नहीं है, उसके आंसर में है। सवाल पूछा गया व्हाई डू यू यूज C++? सवाल बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो भाई आपने जब C++ की बात की है तो क्यों इसे आप यूज कर रहे हैं? या ऑन द अदर हैंड अगर किसी ने ये कहा कि जी C++ नहीं मैं यूज करता, तो उससे अगर पूछा जाए कि जी क्यों यूज नहीं करते आप C++, अब एक आंसर ये हो सकता है जो मैं आपको पहले से कह देता हूं कि रॉन्ग आंसर। अब देखें, लेमैन के लिए ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोफेशनल के लिए ये आंसर सही नहीं है। अगर कोई इस सवाल के जवाब में जी व्हाई डू यू यूज C++, उसके जवाब में वो कहता है जी C++ इज गुड, तो लेमैन के लिए ठीक है, लेमैन खुश हो जाएगा, अच्छा जी C++ अच्छी होती है। और वो शख्स जो प्रोफेशनल के लिबादे में लेमैन बैठा हुआ है, वो अपने तौर पे मुतमिन हो गया कि जी मैंने कह दिया जी बस C++ सही होती है, गुड होती है। बट अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनल्स के स्टैंडर्ड पे ये जवाब गलत है, बल्कि ये बेवकूफाना जवाब है। आप सड़क पे चलते हुए जिस तरह टीवी पे वो दिखाते हैं ना, आवाम से राय लेते हैं कि जी महंगाई हो गई है तो कुछ बताएं, तो उनकी वो प्रिपेयर्ड भी नहीं होते और वो लेमैन होते हैं, उनके आंसर्स बड़े बोंगे से ही होते हैं। वो कहते हैं जी बा हम तो जी लुट गए मारे गए, उनके इस किस्म के जवाब होते हैं, वो लेमैन है। लेकिन अगर आपसे किसी पढ़े लिखे आदमी से, प्रोफेशनल से कोई सवाल पूछा जाए, तो यू ट्राई टू बी मोर एक्सप्रेसिव। अगर आपने भी वही जवाब देना है जो लेमैन ने ही जवाब देना है, तो फिर आप में और क्या डिफरेंस होगा, आप में और उस लेमैन में, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये गलत आंसर है, C++ इज गुड। या फिर जिससे पूछा गया था व्हाई डू यू नॉट यूज C++, वो कह देता है जी C++ इज नॉट गुड, जी अच्छी नहीं होती। मेरा ख्याल है उस वक्त ये महसूस होगा सवाल पूछने वाले को, जी दुनिया में बस ये एक अक्लमंद है
जिसको सी प्लस प्लस गुड लगती है या सी प्लस प्लस गुड नहीं लगती, बाकी सारे बेवकूफ हैं क्या? सी प्लस प्लस फिर है किस लिए अगर वो गुड नहीं है? तो सोचें जरा, ये लेमैन वाली अप्रोच से बाहर निकले। ये आंसर 0 मार्क्स है जी, सी प्लस प्लस इज गुड। ये कुछ छठी सातवीं क्लास का बच्चा भी अब इस तरह का जवाब नहीं देगा, आप तो फिर प्रोफेशनल्स हैं। तो फिर करेक्ट आंसर क्या है? ये देखें, ये टोटली नॉन प्रोफेशनल आंसर है। तो प्रोफेशनल आंसर फिर क्या होगा? प्रोफेशनल आंसर ये होगा, आप उसे कहें जी, देखें जी, बिकॉज सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and it's a versatile language. It is best for making reusable code. That's why I like C++. I like working in C++. ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही एक सबूत हो, और भी सबूत हो सकते हैं। मसलन ये आप कह सकते हैं जी, इट्स इजी टू लर्न लैंग्वेज, इट्स प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। बहुत सारी तारीफें आपने C++ की सुनी है, आपको खुद भी पता है। तो इट्स द टाइम नाउ कि इस किस्म के क्वेश्चन के आंसर में आप ये वाला सपोर्टिव एविडेंस डाल दें। देखिए, शुरू में मैंने आपको कहा कि जो लेमैन की बात होती है, इट लैक्स एविडेंस, उसमें कोई एविडेंस नहीं होता, और हमें जरूरत भी नहीं होती लेमैन से। लेकिन आप लेमैन नहीं है, आप प्रोफेशनल हैं, आपसे हम लेमैन वाले लफ्ज की तवक्को नहीं रख सकते, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है। तो फिर उतने ही मार्क्स आपको देंगे जितने लेमैन को देने हैं। उसको 0 देना तो फिर आप भी 0। तो आप इससे मिलते जुलते कोई क्लू के साथ भरे हुए, अब देखें यहाँ पे वो डब्यूज वाले क्वेश्चन के आंसर भी आ गए। व्हाट, मुझे सी प्लस प्लस पसंद है बिकॉज व्हाट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जी, व्हाट हो गया, वाई भी हो गया। अगर हु या व्हेन की जरूरत है तो वो भी इस जुमले में लिखे जा सकते थे, लेकिन उनकी जरूरत नहीं थी। आपने वो जो व्हाट है या व्हेन है या विच है, उसको बीच में शामिल कर दिया। विच है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या वर्सेटाइल। तो वो जो वाई है वो भी इसमें आ गया। C++ is the best for making reusable code. हाँ, बेस्ट सिर्फ कह देना काफी नहीं है जी, C++ is best। आप बताएं क्यों, क्यों बेस्ट है? Why? For making reusable code। जरा गौर से गलत वाले आंसर को पढ़ें और जरा गौर से करेक्ट वाले आंसर को पढ़ें। C++ is good। जनाब, किसी अनपढ़ आदमी को या आपके घर में कोई पूछता है जी भाई आप किस में काम करते हैं, क्यों करते हैं, तो उनको बताने के लिए काफी है जी C++ गुड है, मैं इसलिए उसमें काम करता हूँ। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल ये वाला सवाल और उसका ये वाला जवाब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये ट्रू सेंस में प्रोफेशनल का आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ लिखी मिल गई। अब कुछ और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, सारी तो नहीं लेकिन जितनी मैक्सिमम हम कवर कर सकते हैं। लाइक किसी से सवाल पूछा गया है, ये नहीं थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस से बाहर निकले, वैसे जनरली प्रोफेशनल से, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर ट्रांसपोर्टेशन। हो सकता है बॉस अपने एम्प्लॉय को या किसी कोई इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यूई को या कोई सीनियर जूनियर को सवाल पूछता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर ट्रांसपोर्टेशन, कि भी तुम्हारा जो आने जाने का है, ट्रांसपोर्टेशन का जो, उसका प्रॉब्लम है क्या भाई तुम्हारा, तुम अक्सर लेट हो जाते हो। कोई इस किस्म के इंटेंशन के साथ ये सवाल पूछा गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर ट्रांसपोर्टेशन। जो आंसर है वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, इट्स अ रॉन्ग आंसर। उसका आंसर है जी द प्रॉब्लम इज ओल्ड कार। अब ये देखें, थोड़ा आगे जाने से पहले ज़हन में रखें कि लेमन के हिसाब से बहुत जस्टिफाइड आंसर है। वो जनाब पुरानी कार है जी, लेमन ने ये कहा, वो फारूक हो गया, उससे और आप तवक्को भी नहीं रख सकते कि जी वो कोई कोई पढ़े लिखे वाली बात करे, वो यही बात करेगा लेमन। तो जनाब मसला ट्रांसपोर्ट का आपने पूछा है जनाब, तो वो गाड़ी पुरानी है। अब देखिए, टेक्निकली इट्स नॉट द रीजन। आपने सड़क पे बहुत सारी पुरानी गाड़ियां भी देखी हैं जो बेवकूफ फरफर आपके सामने से फराटे हुए बढ़ती हुई जा रही हैं, उनमें
कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, उनके पास अभी भी सुजुकी 800 सीसी कार है, जो सबसे पहला कोई मॉडल उन्होंने दिया था, एफएक्स, और वो भी तो ओल्ड कार ही है, वो कोई अभी तो नहीं बनी, वो 30-35 पता नहीं कितने साल पुरानी गाड़ी, लेकिन वो उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की है कि जनाब, शायद कोई और किसी किस्म की उसी दौर की खरीदी हुई गाड़ी, पुरानी गाड़ी शायद उस वो हो, लेकिन असल में उसका पुराना होना कसूर नहीं है, ये असल प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम कुछ और है। अब करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बेटर आंसर ये हो सकता है आपने, the problem is old car which has worn out engine and it runs at slow speed। ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है, लेमैन से बेहतर अप्रोच है प्रोफेशनल की अप्रोच। जनाब आप वो कह के फारिग ना हो कि जो पुरानी कार है, आप थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं। जी वो पुरानी कार होने की वजह से उसका इंजन जो है वो वॉर्न आउट हो गया, पुराना हो गया, वो भी यानी इस्तेमाल होते होते खराब होता जा रहा है। एंड इट रन स्लो स्पीड, यानी वो फिर इतना ताकतवर नहीं है इंजन कि वो सही स्पीड से वो गाड़ी आ सके, इसलिए हो सकता है लेट हो जाता है, या हो सकता है रास्ते में उसको रुकना पड़ जाता है, और भी कई रीजंस हो सकती हैं। वो जितने मैक्सिमम आंसर व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई या हाउ आप इसमें ऐड कर लेते हैं, तो आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक आंसर बन जाता है, खास तौर पे ये साबित करने के लिए कि आप लेमैन नहीं है, प्रोफेशनल। किसी पढ़े लिखे से भी आप वही जवाब सुनेगा, पुरानी गाड़ी हो गई है, तो फिर उसमें और लेमैन में क्या फर्क है, दोनों बराबर हो गए। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। आपसे किसी का ओपिनियन लिया गया जी, अब कि जी मिस्टर जॉन, मैंने जानबूझ के कोई पाकिस्तानी नाम नहीं लिखा, बस जॉन अलेक्जेंडर, वो इस तरह के एग्जाम्पल, व्हाट इज रॉन्ग विद मिस्टर जॉन। अब पूछने वाला ये जानना चाह रहा है कि जी ये जो जॉन है, ये कोई गड़बड़ है इसकी कोई, या इसका कोई मसला है, इस वजह से लोग पसंद नहीं करते, समथिंग दे वांट टू फाइंड आउट। अब आप देखें, हस्ब मामूल इसका रॉन्ग आंसर क्या होगा? रॉन्ग आंसर ये होगा जी, जॉन इज अ बैड मैन। ये हमारे बिल्कुल देसी अप्रोच। आप किसी से पूछते हैं यार वो फलां शख्स कैसा है, तो अक्सर आपको जवाब मिलता है यार बंदा सही नहीं है। देसी जुबान में जो कहते हैं ना, वो बंदा सही नहीं है जी। यार ये बंदा सही नहीं है कि तो कई मतलब हो सकते हैं, पढ़े लिखे को तो खास तौर पे कंफ्यूजन होगा। वो ये भी सोच सकता है बंदा सही नहीं है तो क्या बीमार है, सही तरह चल नहीं सकता। लेकिन वो लेमैन जो है वो जिस तरह बोल रहा है, और जो लेमैन सुन रहा है वो शायद जल्दी समझ जाए। इस वजह से कि पढ़े लिखे आदमी किसी के मुतालिक सिर्फ इतनी बात पे मुतमिन नहीं होते, ये सुन के मुतमिन नहीं होना चाहिए उन्हें जी वो बैड मैन है। भी कोई बताएं तो सही कि आप क्यों बैड मैन उसे कह रहे हैं, आके मैं भी मुहतात रहूं, बंदा सही नहीं है, ये नहीं, ये अप्रोच नहीं चलेगी, पढ़े लिखे में नहीं चलेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट के जी फिर सही तरीका क्या है। बेटर आंसर ये हो सकता है, आप वाकई इस बात पे तुले हुए हैं कि जी ये जॉन को बैडमैन के तौर पे ही इंट्रोड्यूस करवाना है, तो फिर आप कहें कि जी मिस्टर जॉन टेल्स लाइज, थोड़ा सा तहजीब में रहते हुए, ये जो मिस्टर जॉन है देखें जी, ही इज अ लायर, झूठ बोलता है, एंड ही चीट्स पीपल बाय हाइडिंग फैक्ट्स। कोई ऐसे हकायक हैं जो लोगों को पता चलने चाहिए, वो उनको छुपा देता है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता बिलीव करेंगे कि हाँ ये बात तो यार कोई अच्छा आदमी तो नहीं करेगा, बैड पीपल ही करे होंगे। व्हेन ही बोरोज मनी ही डज नॉट रिटर्न इट। अब देखें, इससे बड़ी एक, देखें सबूत में हमने कोई तस्वीरें नहीं दिखानी, कोई वीडियोस जी जिसमें कोई काम गलत हो रहा हो, मिस्टर जॉन गलत काम कर रहे हो, हमने अपने ओपिनियन की एक एविडेंस देनी है कि आप क्यों समझ रहे हैं। जिस तरह मैंने सी प्लस प्लस की बात की थी, तो वो भी किसी का पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड ओपिनियन है। अब इसी तरह जिस तरह जॉन पूछा जा रहा है, तो जॉन के मुतालिक कोई बात तो बताएं ना कि आप क्यों उसे बैड एक्सक्यूज मी, क्यों उसे आप बैडमैन समझ रहे हैं या कैरल वार हैं।
You should give some idea to the other person, to the listener, because देखें जी, he cheats people, he tells lies. वैसे तो इतना कहना काफी है किसी को बैड साबित करने के लिए. If when he borrows money, he does not return it. अब एक्चुअली मिस्टर जॉन इस तरह का है या नहीं, वो इस वक्त सवाल नहीं है. इस वक्त सवाल ये है कि जो बात जिसको पूछी जा रही है वो उसे किस तरह से बता रहा है. लेमन की तरह उसने जो बात की थी वो तो बहुत खतरनाक हुई. अगर मिस्टर जॉन वाकई बैडमैन है तो मुझे बहरहाल शक में रख दिया कि जी पता नहीं क्यों बैडमैन है. और अगर जॉन बैडमैन नहीं था और कह दिया गया बैडमैन है तो ये तो बहुत खतरनाक बात है. ये तो किसी पे एक इल्जाम लगाने वाली बात है. वो अगर आपको याद हो कंटेम्पररी इश्यूज में, तो ये तो एक स्लैंडर हो गया. इल्जाम लगाना ये एक तरह की चुगलखोरी ही हो गई ना, जो कि पढ़े लिखों का शेवा नहीं. पढ़े लिखे अगर किसी की हकीकत बता भी रहे हैं कि जी क्यों वो बैडमैन है, तो कोई बात तो बताए ना कि जी इस वजह से बैडमैन समझा जा रहा है, बिकॉज ही इज अ लायर. बहुत ही एक शरीफ आदमी को ये कह देना कि वो झूठा है, ये बहुत बड़ी एक क्लो होती है. किसी के मतलब समझ लेना कि ये झूठा है तो ये तो बहुत एक बड़ी बात है अगर आप उसको महसूस करें. अब उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने नीचे लिख दी है, आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं. तो थोड़ा सा आप टाइम मुझे और दें, एक 2 मिनट का. एक एग्जाम्पल है जो मुझे बहुत पसंद है. एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में मैं आपको सिनेरियो बता दूं. ये जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उसमें एक कमेंटेटर होता है जिस तरह रमीज राजा है, और एक शख्स होता है जो कि उस कमेंट्री के साथ एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है. तो एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब है कोई प्रोफेशनल है तभी वो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है ना. लेकिन अगर आप सुने कि जी एक एक्सपर्ट ऐसा ओपिनियन देता है जो हमें पहले से ही पता था, या ये कि वो बिल्कुल आम आदमी, अनपढ़ आदमी की तरह का ही ओपिनियन देता है, ये उसके अंदाज में ओपिनियन देता है, तो फिर सॉरी, उस प्रोफेशनल में, सो कॉल्ड प्रोफेशनल में और लेमैन में तो कोई फर्क नहीं. एक तो ये कि हमें पहले से पता है एक बात, आप नई बात बताएं ना. आपको प्रोफेशनल के तौर पे हमने इसलिए हायर किया, लेकिन आप भी वही बात बता रहे हैं जो हमें भी पता थी और जो लेमैन भी कहते हैं, तो फिर व्हाट्स योर यूज. अब वो जो सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक ऐसा एक्सपर्ट है जो कि वो क्रिकेट कमेंट्री में ओपिनियन दे रहा है, एक्सपर्ट ओपिनियन, माहिराना राय. लेकिन अगर आपको महाराणा राय में भी वही बात सुनने को मिले जो कि एक आम आदमी कह रहे हैं, तो फिर इसको हटाओ, वो आम आदमी को कम पैसों पे ले आओ, वही अच्छी ओपिनियन दे रहे हैं. अब ये आपको सिनेरियो समझना, बिकॉज यू आर ऑल्सो, यू हैव ऑलरेडी बिकम अ प्रोफेशनल. आपका ओपिनियन और किसी एक आम आदमी के ओपिनियन में फर्क तो होना चाहिए ना. अब जरा इस एग्जाम्पल से आप समझें. आप वो क्रिकेट कमेंटेटर ने किसी एक स्टेज पे उस, ये वैसे ट्रू वाकया है जिसको यहाँ पे मैंने पिक्चर किया हुआ है. मैं उस शख्स का नाम नहीं यहाँ पे लूंगा जो कि सो कॉल्ड एक्सपर्ट है. अब उस एक्सपर्ट से उसने पूछा जी व्हाट शुड दी क्रिकेट टीम्स डू इन द करंट सिचुएशन, कि इस वक्त जो सिचुएशन बन गई उसमें क्रिकेट टीम्स जो हैं, दोनों टीम्स, उनको क्या करना चाहिए. व्हाट इज योर एक्सपर्ट ओपिनियन और व्हाट इज योर एडवाइस. अब जो एक्सपर्ट सो कॉल था उसने जो आंसर दिया वो वंस अगेन मैं आपको कह देता हूँ, इट्स रॉन्ग आंसर. द एक्सपर्ट सेज, वैसे उसने उर्दू में कहा था लेकिन उसकी इंग्लिश, बॉलर्स शुड बॉल वेल एंड द बैट्समैन शुड बैट वेल. अब वैसे तो बहुत ही सूफियाना किस्म का एक मशवरा है, लेकिन आम आदमी भी यही कह रहा है. अब वो एक्सपर्ट भी यही कह रहा है. आई डोंट लाइक इट. एक्सपर्ट के मुंह से मुझे कुछ और सुनना था. वो कह रहा है जी बॉलर्स को चाहिए कि अच्छी अच्छी गेंदें करवाएं और बैट्समैन को चाहिए कि अच्छी अच्छी बैटिंग करें. तो ये तो अंडरस्टूड है भाई. दिस इज नॉट एन एक्सपर्ट ओपिनियन. बॉलर्स को अच्छी बॉल्स करनी चाहिए, बैट्समैन को अच्छी तरह खेलना चाहिए. एवरीबॉडी नोज दैट. वो आपका छोटा भाई जो मैट्रिक में पढ़ता है वो भी यही जानता है.
एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं। तो एक्सपर्ट का मतलब है प्रोफेशनल। सॉरी, आई डोंट एक्सेप्ट हिम एज एन एक्सपर्ट और एज अ प्रोफेशनल इवन। अब उससे बेहतर क्या अप्रोच हो सकती थी? जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट है, अब इसी को आप कंपेयर करें एक सीजन्ड जो क्रिकेटर है, जो कि क्रिकेट से रिटायर होके एक एक्सपर्ट बन गया है, जो टीवी पे अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देता है। तो अब ये वो बात है जो आप सुनना चाहेंगे अगर आप क्रिकेट लवर हैं, फैन है क्रिकेट के, आप सुनना पसंद करते हैं कमेंट्री, दूसरों के आइडियाज, दूसरों के कमेंट। तो वो आपको इस किस्म के जवाब जरूर मिलेंगे, लाइक द बेटर पर्सन विल बी सेइंग द बॉलर्स शुड मेंटेन देयर स्पीड, द लाइन एंड लेंथ, एंड लेट द बैट्समैन मेक मिस्टेक्स। ये उससे बेहतर नहीं है कि जी बॉलर को अच्छी गेंद करानी चाहिए। वो अब मैं टेक्निकली आई एम नॉट वेरी मच क्रिकेट एक्सपर्ट, मैं बस क्रिकेट देखने की हद तक, लेकिन मैं भी शायद ये कहूँ कि यार अच्छी गेंदें नहीं करा रहे बॉलर। लेकिन फिर एक्सपर्ट तो मुझसे कई स्टेप आगे है ना, वो प्रोफेशनल है, उसके बोलने में और मेरे बोलने में डिफरेंस होगा ना। बॉलर्स शुड मेंटेन देयर स्पीड, लाइन एंड लेंथ, आई डोंट नो ये क्या चीजें हैं, लेकिन आई बिलीव के दे आर टेक्निकल टर्म्स जो बॉलर की बेस्ट कैपेसिटी शो करते हैं। उसकी कैपेसिटी कब सामने आती है? जो वो अपनी स्पीड को कंट्रोल करता है, अपने भागने की स्पीड को या मे बी बॉल फेंकने की स्पीड को। लाइन एंड लेंथ कि जी किस लाइन पे उसने बॉल फेंकनी है और वो किस लेंथ पे जाके, लेट द बैट्समैन मेक मिस्टेक। अब ये एक एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आप पेशेंस के साथ बॉलिंग कराओ, अपनी लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल करते जाओ, और यकीनी है कि बैट्समैन जो है वो मिस्टेक करेगा कोई, जिससे वो कैच आउट हो जाएगा या बोल्ड हो जाएगा या रन आउट हो जाएगा या वट। ऑन दी अदर हैंड जो बैट्समैन को कोई मशवरा दे रहा है, वो कह रहा है बैट्समैन शुड बैट विद कॉन्फिडेंस एंड एब्सोल्युटली मेक नो मिस्टेक्स, मेक गुड यूज ऑफ योर फीट। आई एम नॉट अ क्रिकेटर सो आई कैन नॉट बेटर कमेंट ऑन दिस, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ बेटर ओपिनियन, बेटर देन मी। मेक गुड यूज ऑफ फीट यानी आप बैटिंग कर रहे हैं, आप अपने बॉडी का जो बैलेंस है वो फीट पे ही है ना, पाँव पे है, तो उनको जरा इस तरह से यूज करें कि आपके बॉडी बैलेंस में हो, ताकि आप बेहतरीन हिट लगा सकें, या अगर आउट होने वाली कोई बॉल है तो उससे आप बच सकें। एंड हिट ओनली लूज बॉल्स, यानी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है कि उसमें बैट्समैन को हर एक गेंद पे नहीं शॉट लगाना, उसे कोशिश करनी है कि जी वो सिर्फ लूज बॉल्स को जो कि इजीली हिट हो सकें और उनपे आउट होने का कोई चांस ना हो। अब ये एक एग्जांपल मैंने कंप्यूटर साइंस की नहीं है, लेकिन ये अक्सर ये जो लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं खेलना या उसको देखना, उनको फौरन इसकी समझ आ सकती है, आएगी भी यकीन। लेकिन आपने अब इसी एग्जाम्पल के तहत अपने आप को, अपने उस पुराने अप्रोच को मॉडिफाई करना है, खासतौर पे जब आपके एग्जाम्स आपके सामने आएंगे। तो अब वहां पे आप ये क्रिकेट वाली एग्जाम्पल नहीं देंगे, आप अपने फील्ड की एग्जाम्पल्स को पकड़ेंगे, और वो मैंने आपको दे दी, जिस तरह वो C++ का था, या वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस के मुताबिक किसी प्रोफेशनल या किसी की पर्सनैलिटी को जज करने का ये वाला एग्जाम्पल। छोटी सी प्रैक्टिस है जो मैं चाहूंगा कि आप, प्रैक्टिस इस तरह है कि आप कुछ रिलेटेड और कुछ अनरिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने पास कागज पे लिखें। वी विल बी डिस्कसिंग देम इन द इंटरएक्टिव सेशन ऑन थर्सडे। तो ये जरूर करें, वरना मेरी एंड से तो पूरा आपके पास है, लेकिन फिर आपके एंड से कोऑपरेशन नहीं आ रहा हो। आपको ये चाहिए कि इसके आंसर्स करें और मेरे साथ आर्गू करें, आपने कैसे जस्टिफाई किया उन आंसर्स को, स्पेसिफिक होने पे, नॉन एम्बिगुअस होने पे और प्रोफेशनल होने पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसपे आप कोई आंसर लिखें और सिनेरियो भी आप खुद ही समझें। हाउ आर यू? यू लुक वरिड।
आप किसी से पूछते हैं यार क्या हाल है तुम्हारा, क्या मसला है, व्हाई आर यू लुकिंग वरिड, उसी नौयत का एक क्वेश्चन है, अब उसका आंसर क्या होना चाहिए? एक तो बहुत ही सीधा सा आंसर हो सकता है जो बात ही खत्म कर दे, जी गो टू हेल, तुम कौन हो। नहीं, प्रॉपर आंसर, अब बीइंग अ प्रोफेशनल राइटर, प्रॉपर आंसर, क्योंकि जो प्रोफेशनल पूछ रहा है वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पे, अब वो उसी तरह के एक रेसिप्रोकेटिंग जवाब, लेकिन स्पेसिफिक, नॉन एम्बिगुअस एंड प्रोफेशनल आंसर, एक लाइन या दो लाइन में आप इसका आंसर लिखें, एंड देन वी विल एक्चुअली कंसिडर दीज एग्जांपल्स इन द इंटरैक्टिव सेशन, तो ये जरूर आपने लिखना है। अब एक सवाल है जो थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं। लाइक यू कैन आस्क व्हाट डू यू थिंक, हु डू यू थिंक वाज राइट, आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन सही था? एक वो मिस्टर खलील कमर और दूसरा मारवी मेमन। तो जरा एक आंसर आप बिल्ड करें, आप ये नहीं कहेंगे कि वो जी फलां इज अ गुड पर्सन एंड फलां इज अ बैड लेडी, नहीं, ये आंसर नहीं है। आंसर आपको देना है प्रोफेशनल, लेमैन वाला आंसर नहीं कि वो जी दोनों ही पागल हैं जी, दोनों बेवकूफ, ये आंसर नहीं चलना। किसी और सब्जेक्ट में चल जाए, लेकिन यहाँ पे इस प्रोफेशनल प्रैक्टिस में नहीं चलना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रीसेंट रिक्वायरमेंट्स रिपोर्ट? अब ये प्रोफेशनल है, ये आपको सिनेरियो थोड़ा सा खुद बिल्डअप करना है कि आपके ही फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में रिक्वायरमेंट्स का फेज है। आप किसी से अगर पूछा जा रहा है उसका ओपिनियन कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रीसेंट रिक्वायरमेंट्स रिपोर्ट, आप उसका क्या आंसर होना चाहिए? फिर एक क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द पैसेंजर्स फेस विद पाकिस्तान रेलवेज? देखें, ये बड़े ही बर्निंग इश्यूज हैं जो कि आप सुनते रहते हैं। तो लेट्स सी कि एज अ प्रोफेशनल इफ यू आर मेड टू answer such a question, how will you answer? What is the problem that the passengers face with Pakistan Railways? ये जी मुसाफिरों को पाकिस्तान रेलवे से क्या मसाइल हैं, क्या शिकायत हैं, लेट्स टॉक अबाउट। दो तीन लाइनों में आप इसका एक प्रोफेशनल आंसर लिखें। ये आपकी प्रैक्टिस है, आप जितना गलत लिखेंगे उतना, लेकिन साथ साथ सही लिखने की कोशिश में जितना गलत लिखेंगे वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम उसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको सही करना है। एक आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ सो मच प्राइस हाइक? आप पूछा जा रहा है आपके ख्याल में इतनी महंगाई जो हो रही है उसकी क्या वजह है? अब वो आंसर नहीं चलेगा जो टीवी पे न्यूज में दिखाते हैं जी, वो हुकूमती ना है जी, वो हुकूमत के लोग करप्ट हैं जी, बेवकूफ हैं जी, वजीर आजम ये है वो है। आपने अपना एक ओपिनियन, चाहे वो गलत ही सही, लेकिन आपने उसको लिखना प्रोफेशनल अंदाज में है। जरूरी नहीं होता कि हर एक का एक ओपिनियन जो है वो सही हो, लेकिन हर एक को सही तरीके से ओपिनियन लिखना जरूर है, उसी के पॉइंट्स हैं। So hopefully you've understood whatever I wanted to tell you in this part of the video 2, and you have listened to it and watched it. मैं आपके लिए स्लाइड्स भी अपलोड कर चुका हूँ, आपने उसको उसी इंटरेस्ट के साथ और उसी इंथुजियाज्म के साथ इसको देखा है, देख रहे हैं जितने इंथुजियाज्म के साथ हम आपको ये बता रहे हैं। हमारी ये ड्यूटी है, हमने आपको बताना है, सिखाना है, तो आपकी ड्यूटी उसको सही तरीके से समझना है। जो नहीं समझ आता, आपकी ड्यूटी है आप इंटरैक्टिव में वो सवाल पूछें। अभी तक इंटरैक्टिव सेशन में उस तरीके से आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जितनी मरतबा चाहें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है और इसका यही मकसद है। आपके जहन में कंफ्यूजन आती हैं, कोई नए किस्म के आपको प्रॉब्लम्स सामने नजर आती हैं, तो आस्क द टीचर, ask me. So we'll put say it a day today at this point, and inshallah on Thursday we'll be having the interactive session, and it should be very productive one. That depends on you how much productive you make it. So
From my side, it is Allah Hafiz. Inshallah, we'll be talking on the interactive session. Take care, everybody.